یا دنیا بہت ظالم ہے، انہوں نے مجھے میری خوشیاں چھین لے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا ایم اے سٹوری سینٹر میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی یتیم لڑکی کی جس کے آنسو شاید کسی نے نہیں دیکھے، مگر آسمان نے ہر قطرہ لکھ رکھا تھا۔ یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں، بلکہ صبر، ظلم اور ایک ایسے انصاف کی داستان ہے جو دیر سے آتا ہے مگر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ گاؤں کی ایک خاموش گلی میں ایک پرانا سا گھر تھا۔ اسی گھر میں رہتی تھی ایک یتیم لڑکی، ہاجرہ۔ نہ ماں تھی، نہ باپ، اور نہ ہی کوئی ایسا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چھوٹی عمر میں ہی رشتہ دار خالہ نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ شروع میں سب نے یہی کہا تھا، ہم اس بچی کا خیال رکھیں گے، یہ بھی ہماری اپنی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ لفظ اپنی صرف ایک لفظ رہ گیا، احساس نہیں رہا۔ ہاجرہ ہر صبح سب سے پہلے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، برتن دھوتی، پانی بھرتی، اور پھر آخر میں خود چپ چاپ کسی کونے میں بیٹھ کر روٹی کھاتی۔ اس کے لیے کبھی کوئی تعریف نہیں تھی، صرف حکم تھے۔ خالہ اکثر سخت لہجے میں کہتی، ہاجرہ، یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ہاجرہ سر جھکا کر جواب دیتی، خالہ، میں ابھی کرتی ہوں، معاف کر دیں۔ مگر اس کی معافی کبھی کافی نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد بھی اسے ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ خاموش رہتی تو کہتے، بہت گھمنڈی ہو گئی ہے، اور اگر بولتی تو کہتے، زیادہ زبان چلانے لگی ہے۔ ہاجرہ کے لیے ہر راستہ بند تھا، سوائے صبر کے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو ہاجرہ چپکے سے چھت پر آ جاتی۔ وہاں بیٹھ کر وہ آسمان کو دیکھتی، جیسے ستاروں سے بات کر رہی ہو۔ وہ آہستہ سے کہتی، اے اللہ، میرے نصیب میں یہ سب کیوں لکھا ہے؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا۔ پھر خود ہی جواب دیتی، اللہ سب جانتا ہے۔ یہ جملہ اس کی طاقت بھی تھا اور اس کا سہارا بھی۔ ایک دن گھر میں معمول سے ہٹ کر کچھ ہوا۔ خالہ کمرے میں آئیں اور اچانک چیخ پڑیں، میرا زیور کہاں ہے؟ پورا گھر اکٹھا ہو گیا، سب حیران تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ خالہ کی نظر آہستہ آہستہ ایک جگہ رکی، ہاجرہ، ہاجرہ۔ خاموشی ٹوٹ گئی۔ تم اس کمرے میں گئی تھی آج صبح؟ خالہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاجرہ گھبرا گئی، جی خالہ، صفائی کے لیے گئی تھی مگر میں نے کچھ نہیں لیا۔ خالہ نے فوراً بات کاٹ دی، بس یہی کافی ہے۔ اس لمحے ہاجرہ کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ اسی دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ اب ہر نظر اس پر شک کرنے لگی تھی، ہر بات میں طنز تھا، ہر حکم میں نفرت۔ خالہ اکثر کہتی، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور تم نے یہ بدلا دیا۔ ہاجرہ بس خاموش رہتی، کیونکہ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ رات پھر آئی، مگر اس رات ہاجرہ کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بھاری تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ خاموشی، صرف خاموشی جواب دے رہی تھی۔ پھر وہی جملہ، اللہ سب جانتا ہے۔ مگر اس بار اس جملے میں صرف صبر نہیں تھا، درد بھی تھا اور ایک سوال بھی۔ صبح کی ہلکی سی روشنی گھر کی دیواروں پر پڑ رہی تھی، مگر اس گھر کے اندر اندھیرا پہلے ہی گہرا ہو چکا تھا۔ ہاجرہ پوری رات جاگتی رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر دل اس سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، پانی لینے گئی،
मगर आज इसके कदम पहले जैसे नहीं थे। हर कदम जैसे इससे पूछ रहा था, क्या तुम वाकई मुजरिम हो? मगर वो जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो बेकसूर थी। जैसे ही वो सहन में आई, खाला पहले से वहां खड़ी थीं। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में वही पुराना शक, मगर इस बार गुस्सा भी था। जेवर अभी तक नहीं मिला, खाला ने सर्द आवाज में कहा। हाजरा ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया, खाला, मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं लिया, मैं कैसे चूर हो सकती हूं? खाला ने तंजिया हंसी हंसी, हर चूर यही कहता है। ये जुमला हाजरा के दिल पर तीर की तरह लगा। घर के बाकी अफराद भी अब इस तरफ आ चुके थे। सबकी नजरें इसी पर थीं। एक रिश्तेदार औरत ने सरगोशी की, पता नहीं कब से ये सब कर रही होगी। हाजरा ने ये बात सुन ली, मगर वो खामोश रही, क्योंकि अगर वो बोलती तो शायद कोई यकीन ना करता। खाला ने सख्त लहजे में कहा, आज से तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। हाजरा ने आहिस्ता से कहा, मुझे नजर में रखने की जरूरत नहीं खाला, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर उसकी बात का कोई असर ना हुआ। अब इस घर में हाजरा सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, वो एक एशक बन चुकी थी। अगर वो पानी लाती तो लोग देखते, अगर वो चुप रहती तो लोग शक करते, अगर वो रोती तो लोग कहते ड्रामा कर रही है। दोपहर तक इस पर काम का बोझ और बढ़ा दिया गया। खाला ने कहा, चूल्हे का सारा काम तुम करोगी, और अगर कोई गलती हुई तो याद रखना। हाजरा ने कांपते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो तन्हा किचन में खड़ी थी, हाथ जल रहे थे मगर आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। वो आहिस्ता से बोली, ए अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? फिर खुद ही जवाब दिया, अल्लाह सब जानता है। मगर इस बार इस जुमले में उम्मीद कम और थकन ज्यादा थी। इसी दौरान घर के अंदर एक और हकीकत जन्म ले रही थी, मगर अभी किसी को इसका अंदाजा नहीं था। खाला का बेटा बार बार अंदर बाहर आ जा रहा था। इसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शाम तक घर का माहौल मजीद सख्त हो चुका था। खाला ने सबके सामने ऐलान किया, अगर जेवर नहीं मिला तो इस लड़की को यहां रहने का कोई हक नहीं। हाजरा के हाथ कांप गए। खाला, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं यतीम हूं, मैं कहां जाऊंगी? खाला ने सख्ती से कहा, यह हमारा मसला नहीं। यह जुमला हाजरा के अंदर कुछ तोड़ गया, मगर वो फिर भी खामोश रही, क्योंकि इसके पास अब सिर्फ खामोशी थी। और अल्लाह, रात का वक्त था, घर में सब सो चुके थे, मगर हाजरा जाग रही थी। वो दरवाजे के पास बैठी थी, बाहर हुआ चल रही थी और अंदर उसका दिल। वो आहिस्ता से बोली, अगर मैं गलत हूं तो सजा दे दे, मगर अगर मैं सच्ची हूं तो फिर ये जुल्म क्यों? खामोशी, फिर वही जुमला, अल्लाह सब जानता है। अगली सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब लोग बार बार उधर उधर देख रहे थे। खाला का चेहरा भी थोड़ा परेशान था, मगर वो अभी भी अपने शक पर कायम थी। हाजरा को दोबारा बुलाया गया। आज आखिरी बार पूछ रहे हैं। खाला ने कहा, जेवर कहां है? हाजरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं लिया खाला, मैं बेकसूर हूं। इस लम्हे घर में खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। घर के अंदर हुआ भारी हो चुकी थी, जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी हों। हाजरा एक कोने में खामोश बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर दिल अभी भी टूट रहा था। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी,
मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह सब जानता है। मगर इस बार इस जुमले का असर किसी पर नहीं हो रहा था। खाला का चेहरा सख्त था। उनके दिल में गुस्सा और बेएतमादी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अब हाजरा को इंसान नहीं बल्कि एक मसला समझने लगी थी। बस बहुत हो गया, खाला ने गुस्से से कहा। आज या तो सच निकलेगा या तुम इस घर से चली जाओगी। हाजिरा के कदम लड़खड़ा गए। खाला, मुझे मत निकाली, मैं कहां जाऊंगी, मेरे पास कोई नहीं। मगर इस घर में उसकी आवाज अब सिर्फ एक हुआ का झोंका थी जो किसी के दिल तक नहीं पहुंच रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक। हाजिरा ने दरवाजा खोला। बाहर एक नौजवान लड़का खड़ा था, आम सा मगर परेशान चेहरा। मुझे खाला से बात करनी है, वो बोला। हाजिरा कुछ कहने ही वाली थी कि खाला पीछे से आ गई। जैसे ही खाला ने इस लड़के को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये यहां क्यों आया है? हाजिरा घबरा गई। खाला, ये कह रहा है इसे अब से बात करनी है। खाला फौरन चीख पड़ी। गैर मर्द को घर के अंदर बुलाया जा रहा है। हाजिरा ने घबरा कर कहा, नहीं खाला, ये बस बात करना चाहता था, मैंने कुछ नहीं किया। मगर खाला का गुस्सा बढ़ चुका था। खाला ने सबको इकट्ठा कर लिया। देखो सब, यही है इस लड़की की हकीकत। हाजिरा रोते हुए बोली, नहीं खाला, आप गलत समझ रही हैं, वो सिर्फ बात करने आया था। खाला ने गुस्से से कहा, बस अब कोई बहाना नहीं। फिर वो लड़के की तरफ मुड़े। तुम क्यों आए थे यहां? लड़का घबरा गया, कुछ कहे बगैर पीछे हट गया। और उसी लम्हे खाला ने वो जुमला कहा जिसने सब कुछ तोड़ दिया। ये लड़की सिर्फ चोरी ही नहीं करती बल्कि उसका किरदार भी ठीक नहीं। ये गैर मर्दों से चक्कर चलाती है और उन्हें घर बुलाती है। हाजिरा की आंखें खिल गईं। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। मगर अब कोई नहीं सुन रहा था। घर के लोग भी अब गलत समझ चुके थे। एक रिश्तेदार औरत बोली, हमने तो पहले ही कहा था, जैसी इसकी मां थी वैसी बेटी निकली। दूसरा बोला, ये तो शुरू से ही मशकूक थी। हाजिरा कांप रही थी। खुदा के वास्ते मेरी बात सुन ले, मैं बेकसूर हूं। मगर हर लफ्ज दीवारों से टकरा कर वापस आ रहा था। खाला ने सख्त आवाज में कहा, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा नजर ना आना। दरवाजा खुला। हुआ तेज थी। आसमान पर बादल थे। हाजिरा दरवाजे पर खड़ी थी। इसके हाथ कांप रहे थे। वो पीछे मुड़ी। खाला, मैंने इस घर को अपना समझा था। खामोशी, कोई जवाब नहीं। हाजिरा आहिस्ता से बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो गई। हर कतरा इसके चेहरे पर गिर रहा था, मगर वो आंसुओं से ज्यादा नहीं था। वो सड़क पर चल रही थी। ए मेरे अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? फिर वही जुमला, अल्लाह सब जानता है। घर के अंदर एक शख्स खामोश खड़ा था। खाला का बेटा। इसके चेहरे पर पहली बार खौफ था। वो आहिस्ता से बोला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मगर वो खामोश रहा और सच अभी भी दफन रहा। हाजिरा बारिश में गुम हो चुकी थी और घर के अंदर एक झूठ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि सच अभी जिंदा है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में अभी भी नमी और बेचैनी मौजूद थी।
हाजिरा कहीं दूर अंधेरे में खो चुकी थी। न किसी को इसका पता था, न किसी को इसकी फिक्र। बस एक खामोश सा गुना घर की दीवारों के अंदर सांस ले रहा था। घर के अंदर सब लोग बिखरे हुए थे, मगर सबसे ज्यादा बिखरने वाली वो खामोशी थी जो हाजिरा के जाने के बाद रह गई थी। खाला अपने कमरे में बैठी थी। आंखों में गुस्सा कम और बेचैनी ज्यादा थी। हमने सही किया या गलत, वो खुद से पूछ रही थी, मगर फौरन खुद को तसल्ली देती, नहीं, वो लड़की ही गलत थी। मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज कमजोर सी बार बार दोहरा रही थी, अगर वो बेकसूर हो तो। इसी रात घर में एक अजीब सी हरकत हुई। खाला के बेटे के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। ये इस वक्त क्या कर रहा है? खाला ने खुद से कहा। वो आहिस्ता से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खाला ने अचानक दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देखकर वो जिम गई। उनका बेटा, वही गुमशुदा जेवर, दोबारा हाथ में लिए खड़ा था। वो उसे छुपा रहा था। खामोशी। फिर अचानक खाला की चीख, ये क्या कर रहे हो तुम? बेटा घबरा गया। जेवर उसके हाथ से गिर गया। अम्मी, मैं वो हकला रहा था। खाला की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब तुमने क्या था? बेटा जमीन पर बैठ गया। अम्मी, मैं डर गया था। मैंने चोरी की थी और मैं छुपा रहा था। ये सुनकर खाला के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उनके जहन में एक ही नाम गूंजा, हाजिरा। खाला चीख पड़ी, हाय मेरे अल्लाह, हमने क्या कर दिया? वो जमीन पर बैठ गईं। हमने एक बेगुनाह लड़की को घर से निकाल दिया, जलील किया, तोड़ दिया। इनकी आवाज टूट चुकी थी। सुबह होने से पहले ही खाला पागलों की तरह घर से निकले। हाजिरा, कहां हो तुम? वो रोते हुए हर गली में चीख रही थीं। मोहल्ला, रिश्तेदार, गांव, हर जगह, मगर हाजिरा नहीं मिली। खाला बार बार एक ही जुमला कह रही थीं, हमें मुआफ कर दो, हम गलत थे। दूसरी तरफ हाजिरा एक पुरानी झोंपड़ी के पास बैठी थी। बारिश के निशान अभी भी उसके कपड़ों पर थे। आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ। वो बस आसमान को देख रही थी। ए अल्लाह, मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? खामोशी। फिर आहिस्ता से, अल्लाह सब जानता है। रात के आखिरी पहर खाला को एक जगह इत्तिला मिली। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची और जैसे ही इसने हाजिरा को देखा, वो रुक गई। हाजिरा जमीन पर बैठी थी, खामोश, टूटी हुई। खाला दौड़कर उसके पास गई। हाजिरा, हम गलत थे, हमें मुआफ कर दो। हाजिरा ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में दर्द, मगर आवाज बहुत हल्की। मैंने पहले ही कहा था खाला, अल्लाह सब जानता है। खाला रोते हुए, हमने तुम पर जुल्म किया, हमें मुआफ कर दो। हाजिरा खामोश रही, फिर आहिस्ता से खड़ी हुई। हुआ हल्की हो चुकी थी। हाजिरा चलने लगी। खाला चीखी, हाजिरा, कहां जा रही हो? हमें छोड़कर मत जाओ। हाजिरा रुकी। बस एक जुमला कहा है, जहां भी जाऊं अल्लाह मेरे साथ है। और वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कभी किसी के बारे में जल्दी फैसला ना करो, क्योंकि तुम सिर्फ जाहिर देखते हो, हकीकत नहीं। हम अक्सर एक लम्हे के मंजर को देखकर पूरी जिंदगी का फैसला सुना देते हैं, मगर हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान कितने दर्द, कितने आंसू और कितनी खामोश दुआओं के साथ जी रहा है।
اللہ फरमाता है कि वो दिलों के हाल जानता है और वही बेहतर जानता है कि कौन सच्चा है और कौन गलत समझा गया है। इंसान गलती कर सकता है, शक कर सकता है, जुल्म भी कर सकता है, मगर अल्लाह कभी गलत नहीं होता और ना ही वो किसी बेगुनाह के सब्र को जाय करता है। और याद रखो, दुनिया का दिया हुआ इंसाफ कभी मुकम्मल नहीं होता। असल इंसाफ हमेशा अल्लाह के पास होता है और वो देर से आता है मगर आता जरूर है। अल्लाह सब जानता है और वही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अगर आपको इस कहानी से कोई सबक मिला तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।